Today's question is find Laplace transform of t cos 2t sin 3t. So आंसर देखेंगे इसका। जब हम इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं तो एनालिसिस करते हैं कि इसमें हमारे पास जो भी फॉर्मूला अवेलेबल है वो अप्लाई नहीं होता है। सो इसमें त्रिकोणमिति की हेल्प से हम इसको रीसेट करेंगे। सो हम क्या करेंगे, इसमें हमने इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया, और वी कैन राइट दिस क्वेश्चन एज 1/2 t 2 cos 2t into sin 3t. So we know that the formula of sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b, and sin a minus b means sin a cos b minus sin a sin b. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलता है 2 cos a sin b. So by using this formula, above question can be written as this sin a plus b means 2t plus 3t 5t, and sin a minus b means 2t minus 3t minus sin t. And we know that sin minus theta is equal to minus sin theta. So by using this property of sin, we can write finally 1/2 t into sin 5t plus 1/2 t into sin t. So now taking Laplace transform of each term, so we have 1/2 Laplace of t into sin 5t plus 1/2 Laplace of t into sin t. So by using the formula of Laplace transform for the product of Laplace of t power n function of t, so this is equal to minus 1 power n and d over ds power n Laplace of ft, and this is equal to minus 1 power n d power n over ds power n function of s also. So हम जब इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे here t power 1 here also t power 1, so minus 1 power 1 d over ds of Laplace of sin 5t plus 1/2 minus 1 d over ds of sin t. So now we know that the Laplace of sin 5t equal to 5 upon s square plus 5. Laplace of sin t equal to 1 upon s square plus 1. Y Laplace of sin at equal to a upon s square plus a square. So we have 1/2 into minus 1 d over ds of 5 upon s square plus 25 plus 1/2 into minus 1 d over ds of 1 upon s square plus 1. So on differentiating this value with respect to s and this value with respect to x also, so we have minus 5/2 into minus 1 s square plus 25 whole power minus 2 into 2s minus 1/2 into minus 1 s square plus 1 power minus 2
into 2s. On simplifying, we get 5 into s upon s square plus 25 whole square plus s upon s square plus 1 whole square is the answer. So next question is find Laplace transform of t and sin power 3t. So डायरेक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर साइन पावर 3t है. साइन 80 cos 80 टाइप होता तो फॉर्मूला अप्लाई. सो क्या करें? We know that the formula of sin 3 equal to 3 sin a minus 4 sin power 3a and sin power 3a equal to 1 upon 4 3 sin a minus sin 3a. So by using this formula, this sin power 3t can be written as 1 upon 4 3 sin t minus sin 3t. So taking Laplace transform of this function, so we have by linearity property we have 3 upon 4 Laplace of t sin t minus 1 upon 4 Laplace of t sin 3t, and by using the product formula of Laplace with t. So जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका था, here t power 1 सो क्या करेंगे -1 पावर 1 करेंगे. उतने ही टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे जितना पावर t का है. d over ds ऑफ लाप्लास ऑफ साइन t करेंगे. ये t को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, लाप्लास सिर्फ साइन का रहेगा. सो हमने लिखा 3 upon 4 into -1 into d over ds into लाप्लास ऑफ साइन t -1 upon 4 into -1 d over ds of लाप्लास ऑफ साइन 3t. सो इस साइन t और साइन 3t के लिए हमारे पास लाप्लास ऑफ साइन 80 फॉर्मूला है. सो वी कैन राइट लाप्लास ऑफ साइन 80 इक्वल टू s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सो वी हैव Laplace of sin t equal to 1 upon s square plus 1 and Laplace of sin 3t equal to 3 upon s square plus 9. So we have minus 3 upon 4 d over ds 1 upon s square plus 1 plus 1 upon 4 d over ds of 3 upon s square plus 9. Or on differentiating this value and this value with respect to s, and we have minus 3 upon 4 minus 1 into s square plus 1 whole power minus 2 into 2s plus minus 3 upon 4 into minus 1 s square plus 9 whole power minus 2 into 2s. So further simplifying, we have the result. On further simplifying, we have 3 by 2 s upon s square plus 1 whole square minus 3 by 2 s upon s square plus 9 whole square is the answer. So next question is find Laplace transform of t power 3 e power 2t into sin t. So यहाँ पर 3 फॉर्मूला अप्लाई होंगे. फर्स्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे लाप्लास ऑफ t पावर n फंक्शन ऑफ t. जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये रहता है -1 पावर n d upon ds d पावर n upon ds पावर n लाप्लास ऑफ ft लिखते हैं. और लाप्लास ऑफ ft हमारा
फंक्शन ऑफ s आता है तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो यहाँ पर t पावर 3 है, सो हमने इस फॉर्मूला को यूज किया, लिखा -1 पावर 3 d पावर 3 अपॉन ds पावर 3 लाप्लास ऑफ e पावर 2t इंटू साइन t। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एक और प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, e पावर ए टी इंटू फंक्शन ऑफ t अगर रहता है तो हम लाप्लास ऑफ एफ टी फाइंड करेंगे और जो भी वैल्यू मिलेगी उसको s इज कन्वर्ट इंटू s माइनस a करेंगे। सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर 2t sin t इक्वल टू, हम लिखेंगे सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t, s इज कन्वर्ट इंटू s माइनस 2। सो फाइनली हम हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है लाप्लास ऑफ sin t, उसको हम यूज करके यहाँ पर लाप्लास ऑफ sin t मीन्स लाप्लास ऑफ sin ए टी इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्र प्लस ए स्क्र यूज करेंगे और हम ये इस फॉर्मूला के हेल्प से लाप्लास ऑफ sin t इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्र प्लस 1 लिखेंगे। सो फाइनली ये स्टेप हमारा लिखा गया -1, क्योंकि -1 पावर 3 था तो अल्टीमेटली -1 होने वाला है, d पावर 3 अपॉन डी एस पावर 3 एंड 1 अपॉन एस स्क्र प्लस 1 एंड s इज कन्वर्ट इनटू s माइनस 2। सो अब हम ये वैल्यूज में यहां पर s इक्वल टू s माइनस 2 रिप्लेस करेंगे। सो हमने लिखा और क्या कर सकते हैं, सो यहां पर हम दो तरीके से काम कर सकते हैं, 2 टाइप से वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट ये कि पहले हम इसको डिफरेंशिएट करें और s इज कन्वर्ट इनटू s माइनस 2 करें तो इजी रहेगा। अगर हम s इज कन्वर्ट इनटू s माइनस 2 करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन टफ हो सकता है। सो हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को 3 टाइम डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ पर d पावर 3 अपॉन डी एस पावर 3 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 है। सो हमने लिखा -1 डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 होल पावर माइनस 2 इंटू 2s एंड s इज कन्वर्ट इंटू s माइनस 2। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम लिखेंगे 2 डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड on differentiating this value with respect to s again, so we have 2 into d over ds of this value। इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मूला से हमने डिफरेंशिएट किया है। सो हमने लिखा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इज 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। सो ऑन सिंप्लीफाइंग we have 2d over ds of s square plus 1 minus 4s square upon s square plus 1 whole power minus whole power 3 एंड यहां पर इसको साथ साथ लिखेंगे क्योंकि ये लास्ट में हमें कन्वर्ट करना है, s इज कन्वर्ट इनटू s माइनस 2। सो अगेन लास्ट टाइम और डिफरेंशिएट करेंगे और हमें ये वैल्यू को डिफरेंशिएट करना रहेगा। So 2d over ds of 1 minus 3s square upon s square plus 1 whole power 3, s is converted to s minus 2 तो करना ही है। So again by using the numerator denominator formula of differentiation we have twice s square plus 1 whole power 3 and differentiation of this value is 0 minus 6s minus 1 minus 3s square into differentiation of denominator is 3 s square plus 1 whole square into 2s
ऑन सिंप्लीफाइंग, यहां पर s इज कन्वर्ट इनटू s-2 अभी करना ही है, ये काम लास्ट में होगा। ऑन सिंप्लीफाइंग वी हैव ट्वाइस 1 प्लस एस स्क्र इंटू माइनस सिक्स एस इंटू 1 माइनस 3s स्क्र अपॉन 1 प्लस एस स्क्र होल पावर 4 एंड s is convert into s-2 also. So further simplifying we have 24 into s power 3 minus s upon 1 plus s square whole power 4 and s is convert into s-2. So अब हम इस जिन जिन प्लेस पर s है वहां पर s-2 पुट करेंगे और हम लिखेंगे 24 s-2 होल पावर 3 माइनस 1 अपॉन s-2 स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 4 इंटू s-2 और नेक्स्ट और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम फाइनल रिजल्ट की तरफ पहुंचेंगे और फाइनल रिजल्ट हमारा 24 इंटू s-2 इंटू एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 5 होल पावर 4 मिलता है। ये इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू u cos hyperbolic u du. So we have Laplace of 0 to u integral u cos hyperbolic u du, and we know that the formula of cos hyperbolic u equal to e power u plus e power minus u upon 2. So we have the given question can be convert Laplace of integral 0 to u e power u into e power minus u upon 2 into u du, or by using the linearity property we can write this step as 1 upon 2 Laplace of integral 0 to u into e power u du plus 1 upon 2 Laplace of integral 0 to u into e power minus u du. So नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करेंगे। जिस क्वेश्चन में इंटेग्रल विद लिमिट 0 टू u और 0 टू t दिखे और उसी के रेस्पेक्ट में हमारा ये इंटेग्रल हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस इंटेग्रल साइन को रिमूव करेंगे और इसके प्लेस पर लिखेंगे 1 अपॉन s। तो हमने ये अपॉन s लिखा, यहां भी इसके प्लेस पर अपॉन s लिखा। लाप्लास सिर्फ हमें इस वैल्यू का फाइंड करना रहेगा। सो हमने लिखा लाप्लास ऑफ u इंटू ई पावर u। सिमिलरली यहां भी लाप्लास ऑफ u इंटू ई पावर माइनस u करेंगे। सो इंटेग्रल का रोल यहां पर खत्म हो जाता है। एंड अब क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इसको हम u e पावर u वाला जो टर्म है उसको भी यहां से हम रिमूव करेंगे। अल्टीमेटली क्या करेंगे, देखिए हमें सिर्फ लाप्लास ऑफ u करना है। सो लाप्लास ऑफ u इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर आने वाला है एंड s इज कन्वर्ट इनटू लाप्लास ऑफ u इंटू ई पावर u करने के लिए s इज कन्वर्ट इनटू s माइनस 1 करेंगे। सिमिलरली यहां भी करेंगे, लाप्लास ऑफ u इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर एंड लाप्लास ऑफ ई पावर माइनस u इंटू u इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर एंड s इज कन्वर्ट इनटू s प्लस 1। सो ये वैल्यू आपकी 1 अपॉन s प्लस 1 स्क्वायर मिलने वाली है और ये वैल्यू आपकी
1/s-1 स्क्वायर मिलने वाली। सो वी हैव 1/2s तो कॉमन आएगा और हमने लिखा यहाँ पर 1/s-1 स्क्वायर प्लस 1/s+1 स्क्वायर। So we know that a minus b whole square equal to a square plus b square minus 2ab। So हमने लिखा s square plus 1 minus 2s एंड ये लिखा s square plus 1 plus 2s। Taking LCM and we have s square plus 1 plus 2s plus s square plus 1 minus 2s and minus 2s and plus 2s cancel upon 2s into s square plus 1 minus 2s into s square plus 1 plus 2s। So फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा। हमने लिखा 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2s इंटू एस पावर 4 प्लस एस स्क्वायर माइनस 2s पावर 3 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s प्लस 2s पावर 3 प्लस 2s minus 4s square and we observe that 2s and 2s cancel, 2s power 3 and 2s power 3 also cancelled, remain value is 2 and 2 and cancel also, so remain value is s square plus 1 upon s into s power 4 minus 2s square plus 1। Again we observe that this denominator can be written as s minus 1 s square minus 1 whole square। So final answer is s square plus 1 upon s into s square minus 1 whole square। So next question is find Laplace of t cos hyperbolic t। सो जब हमारा इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हमने जैसा कि बताया था आपको t पावर n फंक्शन ऑफ t टाइप हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1 पावर n d पावर n ओवर ds पावर n इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन इज दिस, फाइंड लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी टी कॉस हाइपरबोलिक टी डी टी। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नो दैट कॉस हाइपरबोलिक टी मीन्स ई पावर टी प्लस ई पावर माइनस टी अपॉन 2। सो फाइनली हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होके 0 टू टी टी इंटू ई पावर टी प्लस ई पावर माइनस टी अपॉन 2 डी टी मिलता है। सो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमने लिखा इंटेग्रल 1/2 इंटेग्रल विद लिमिट 0 टू टी टी इंटू ई पावर टी डी टी प्लस 1/2 इंटेग्रल 0 टू टी टी इंटू ई पावर माइनस टी डी टी। एंड वी नो दैट, देखिए हमारा ये इंटेग्रल यहाँ से रिमूव हुआ और इस इंटेग्रल का रोल क्या है, इसने 1/s मल्टीप्लीकेशन में दिया 1/s। एंड अब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है तो लाप्लास ऑफ ई पावर टी इंटू टी का लिखना है, इधर भी लाप्लास ऑफ टी इंटू ई पावर माइनस टी का लिखना है। अब क्या करें, अब हम यहां से दो मेथड लगा सकते हैं। एक तो मेथड लगा सकते हैं लाप्लास ऑफ टी पावर एन वाला, एक फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। टी पावर एन वाला लगाएंगे तो ये लिखेंगे 1/2s माइनस 1 डी ओवर डी एस ऑफ लाप्लास ऑफ ई पावर टी प्लस 1/2s माइनस 1 डी ओवर डी एस ऑफ लाप्लास ऑफ ई पावर माइनस टी। और वी नो दैट लाप्लास ऑफ ई पावर टी इक्वल टू 1/s माइनस 1 एंड लाप्लास ऑफ ई पावर माइनस टी इक्वल टू 1/s प्लस 1। सो हमने इसको लिखा इस तरह से। फाइनली हमारा स्टेप आ गया -1/2s डी ओवर डी एस ऑफ s माइनस 1 पावर माइनस 1 माइनस 1/2s डी ओवर डी एस ऑफ s प्लस 1 पावर माइनस 1। और ऑन डिफरेंशिएटिंग इनको डिफरेंशिएट करेंगे हम
तो हमारा ये वैल्यू इस तरह से आएगी। सो हम लिखेंगे 1/2s इंटू एस माइनस वन स्क्र प्लस 1/2s इंटू एस प्लस वन स्क्र। टेकिंग LCM and we have s plus 1 square plus s minus 1 square upon 2s into s minus 1 square into s plus 1 square. On solving, we have this result 2s square plus 2 upon 2s into s minus 1 square into s plus 1 square. और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारा एस स्क्र प्लस वन अपॉन एस इंटू एस स्क्र माइनस वन स्क्र होगा। एंड इसको हम क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये है कि हमारा क्वेश्चन अगर ये है लाप्लास ऑफ टी कॉस हाइपरबोलिक टी, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लगाएंगे आप यहाँ पर टी पावर एन फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू -1 पावर एन डी पावर एन ओवर डी एस पावर एन लाप्लास ऑफ एफ टी। सो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर टी पावर 1 है, सो हमने लिखा -1 डी ओवर डी एस ऑफ लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक टी। एंड वी नो दैट लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक टी इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1। सो वी हैव -1 into d over ds of s upon s square minus 1, and on differentiating this value by using the numerator denominator formula, so we have -1 into s square minus 1 into 1 minus s into 2s upon s square minus 1 square. On simplifying, we have -1 into s square minus 1 minus 2s upon s square minus 1 whole square. एंड अगर हम इस क्वेश्चन के साथ इंटेग्रेशन देखते तो हम इंटेग्रेशन और लगाते हैं तो हमारा क्वेश्चन ये 1/s और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ऑफ इंटेग्रल t इंटू ई पावर माइनस टी इंटू साइन 2t dt। सो यहां पर क्या करेंगे, आप स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख के बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिखा, लाप्लास ऑफ साइन 2t। वी नो दैट लाप्लास ऑफ साइन at इक्वल टू a अपॉन एस स्क्र प्लस ए स्क्र। सो लाप्लास ऑफ साइन 2t इक्वल टू 2 अपॉन एस स्क्र प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, e पावर -2t मल्टीप्लाई करें तो बाय यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास ऑफ साइन 2t लिखा हमने, ये इसमें s इज कन्वर्ट इनटू s माइनस ए मींस s इज कन्वर्ट इनटू s माइनस ए एंड a इक्वल टू -1। सो फाइनली हम s प्लस 1 लिखेंगे। सो हमने लिखा लाप्लास ऑफ e पावर -t इंटू साइन 2t इक्वल टू 2 अपॉन s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4। सिंप्लीफाई करेंगे वी हैव 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। एंड नेक्स्ट स्टेप और लिखेंगे हम, t से मल्टीप्लाई करते हैं फिर से, तो हम क्या लिखेंगे, t पावर 1 की वजह से हम इसको लिखेंगे इस तरह से -1 डी ओवर डी एस ऑफ 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। सो फाइनली हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर से बाय यूजिंग द फॉर्मूला एंड वी हैव, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे d ओवर डी एस ऑफ एस स्क्र प्लस 2s प्लस 5 होल पावर -1। सो ये वैल्यू हमें 2s प्लस 2 देने वाली है अपॉन ये वैल्यू को इनटू में करेंगे तो हम इसके साथ में क्या आएगा, -1 को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू एस स्क्र प्लस 2s प्लस 1 पावर -2 एंड माइनस और रहेगा। जब सिंप्लीफाई करेंगे फाइनली तो ये वैल्यू हमें मिलती है 4 इंटू एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्र प्लस 2s प्लस 5 होल स्क्वायर। एंड अब अगर हम इसके साथ इंटेग्रेशन साइन लें
तो इसका सिर्फ रोल रहता है 1/s मल्टीप्लाई करना। सो ये हमारा फंक्शन ऑफ s है। इस फंक्शन ऑफ s के साथ सिर्फ 1/s से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट हमारा इसमें 4 इंटू एस प्लस 1 अपॉन एस इंटू एस स्क्र प्लस 2s प्लस 5 होल स्क्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड Laplace of t square into cos 4t plus 7. So, by using the formula of cos a plus b, we have cos a cos b minus sin a sin b. So, हमने इस क्वेश्चन को लिखा t square into cos 4t into cos 7 minus sin 4t into sin 7. And we observe that cos 7 and sin 7 is nothing but this is the constants. So we have cos 7 into t square into cos 4t minus sin 7 t square into sin 4t. And अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को t पावर n इंटू फंक्शन ऑफ t लाप्लास करेंगे। तो यहाँ पर t पावर n मीन्स ये t पावर 2 है। सो माइनस 1 पावर 2 लिखेंगे। डी स्क्र ओवर डी एस स्क्र इंटू लाप्लास ऑफ cos 4t माइनस 1 पावर 2 डी पावर 2 अपॉन डी एस स्क्र लाप्लास ऑफ sin 4t एंड sin 7। एंड वी नो दैट लाप्लास ऑफ cos 4t इक्वल टू s अपॉन s स्क्र प्लस 16 एंड लाप्लास ऑफ sin 4t इक्वल टू 4 upon s square plus 16. So we have cos 7 into d square upon ds square into s upon s square plus 16 minus sin 7 d square upon ds square 4 upon s square plus 16. अब ये जो वैल्यूज हैं हमारी, इनको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। सो वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे cos 7 t over ds ऑफ एस स्क्र प्लस 16 इंटू 1 माइनस एस इंटू 2s अपॉन एस स्क्र प्लस 16 होल स्क्र माइनस साइन 7 डी ओवर डी एस ऑफ माइनस 4 एस स्क्र प्लस 16 होल पावर यहां पर माइनस 2 भी लिखेंगे। एंड अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको इस तरह से लिखेंगे हम cos 7 इंटू डी ओवर डी एस ऑफ 16 माइनस एस स्क्र अपॉन एस स्क्र प्लस 16 होल स्क्र प्लस 8 साइन 7 डी ओवर डी एस ऑफ एस अपॉन एस स्क्र प्लस 16 होल स्क्र। और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे इन वैल्यूज को, तो हम लिखेंगे cos 7 इंटू एस स्क्र प्लस 16 स्क्र इंटू माइनस 2s माइनस 16 माइनस एस स्क्र इंटू 2 इंटू एस स्क्र प्लस 16 2s अपॉन एस स्क्र प्लस 16 होल पावर 4 प्लस 8 साइन 7 एन एस स्क्र प्लस 16 होल स्क्र इंटू 1 इन माइनस एस इंटू 2 इंटू एस स्क्र प्लस 16 इंटू 2s अपॉन एस स्क्र प्लस 16 होल पावर 4। एंड फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा रिजल्ट लिखेंगे। सो लिखेंगे हम cos 7 माइनस एस स्क्र प्लस 16 इंटू 2s माइनस 4s इंटू 16 माइनस एस स्क्र अपॉन एस स्क्र प्लस 16 होल पावर 3 प्लस 8 साइन 7 एन एस स्क्र प्लस 16 माइनस 4s स्क्र अपॉन एस स्क्र प्लस 16 होल पावर 3। एंड फाइनली हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से रहेगा। सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह का हमारा ये रिजल्ट रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू t एंड इंटीग्रेशन 0 टू t एफ यू डी यू स्क्र इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन एस स्क्र एंड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस अपॉन एस स्क्र। सो इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे लिखेंगे। गिवन दैट लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू t इंटू इंटीग्रल 0 टू t एफ यू डी यू स्क्र। सो हम क्या करें, इस डी यू स्क्र को डी यू इंटू डी यू लिखेंगे और इस तरह से इसको ब्रैकेट में लिखेंगे।
तो पहले हम इस ब्रैकेट को सिंपलीफाई करेंगे। इस ब्रैकेट का रोल क्या रहेगा? हमें पता है जब भी इंटीग्रल विद लिमिट 0 टू t आता है, हम लिखते हैं उस इंटीग्रल को रिमूव करेंगे, उसके प्लेस पे लिखेंगे 1/s एंड लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू t fu du लिखेंगे। अब फिर से इस वैल्यू को, इस इंटीग्रल को रिमूव करेंगे तो इसकी जगह पर फिर से 1/s लिखेंगे और हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिर्फ फंक्शन ऑफ u के लिए रहेगा। सो हमने लिखा 1/s इंटू 1/s एंड लाप्लास ऑफ fu इक्वल टू, हमने लिखा लाप्लास ऑफ ft एंड लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू फंक्शन ऑफ s रहेगा और ये वैल्यू 1/s² होगी। यही हमारा प्रूफ दैट वाला पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू t e पावर माइनस t इंटू cos t dt। सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए वी हैव लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू t e पावर माइनस t cos t dt। अब हमारा क्या है, रूल बोल रहा है इस इंटीग्रल को यहां से रिमूव करेंगे, इसके प्लेस पर हम लिखेंगे 1/s और हम लाप्लास ऑफ e पावर माइनस t इंटू cos t करेंगे। अब नेक्स्ट देखें, ये हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बन रहा है। सो हम यहां से इस e पावर माइनस t को सिंप्लीफाई करने के लिए लाप्लास ऑफ cos t करेंगे और s इज कन्वर्ट इनटू s प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ t जो है -1 है। वैसे हम s कन्वर्ट इनटू s माइनस a करते, बट ये s माइनस माइनस प्लस 1 होगा। हमने लिखा 1/s लाप्लास ऑफ cos t, s is converted to s plus 1 and we know that Laplace of cos at equal to s upon s square plus a square. So finally we have 1/s into s upon s square plus 1 and s is converted into s plus 1. So जिन प्लेस पर यहाँ पर s है उसमें s plus 1 लिखेंगे और हम लिखेंगे 1/s into s plus 1 upon s plus 1 square plus 1 एंड फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से रहेगा s प्लस 1 इंटू s प्लस 1 अपॉन s इंटू s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ऑफ e पावर इंटीग्रल 0 टू t e पावर u इंटू u पावर 3 इंटू डी यू। सो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन। सो क्या करेंगे हम, देखिए वी हैव लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू t e पावर u इंटू u पावर 3 डी यू। तो क्या किया हमने, इस इंटीग्रल को यहां से रिमूव किया एंड हमने लिखा 1/s और लाप्लास ऑफ e पावर u इंटू u पावर 3 लिखा। फिर से फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और हम सिर्फ लाप्लास ऑफ u पावर 3 लिखेंगे, s is convert into s minus 1 and we know that Laplace of t power n equal to gamma of n plus 1 upon s power n plus 1। so इस u पावर 3 को n की तरह डील करें हम, तो हम लिखेंगे 1/s गामा 3 प्लस 1/s पावर 4, s is convert into s minus 1 होना है एंड गामा 4 इक्वल टू 3 2 1 और दिस इज इक्वल टू 6। हमने लिखा 1/s इंटू 6/s माइनस 1 होल पावर 4। यही हमारा फाइनल आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ऑफ t sin हाइपरबोलिक 2t। सो यहां पर कैसे करेंगे, देखिए we have Laplace of t sin hyperbolic 2t and we know that ये t मल्टीप्लीकेशन में है, t पावर 1 है, तो हम यहाँ पर करते हैं t को रिमूव करेंगे और t का रोल है -1 पावर 1 d ओवर ds ऑफ लाप्लास ऑफ sin हाइपरबोलिक t लिखेंगे। सो हमने लिखा यहाँ पर ये एंड वी नो दैट लाप्लास ऑफ sin हाइपरबोलिक t इक्वल टू 2/s स्क्वायर माइनस 4 एंड इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा रिजल्ट मिलेगा 4/s स्क्वायर माइनस 4 होल पावर 2।